علی ابھی بابرکت جی اب اسٹارٹ کریں. یسوع مسیح کا زندہ جلالی بابرکت و فتح نامے آپ سبوں کی آج رات سلامتی ہو. ہم دل سے آپ سبوں کے مشکور ہیں کہ آپ سبوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت کو دیا اور کلام پاک خدا کو مل کر سیکھنے کے آپ نے یہ اقرار کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو آئیے گا ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ سبوں سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں کو بڑے ادب کے ساتھ بند کیجیے گا اور میں کہوں گا کہ پاسٹر قمر صاحب ہیں وہ سٹارٹنگ میں پریئر کریں گے اور پھر ہم ایک ستائی انترا کورٹس کا گائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اپنے ٹاپک کو شروع کریں گے. قدوس قدوس رب الفاظ خداون خدا یسوع ناصری، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پیارے خداون ہمیں اور ہولی منسٹری کے تمام ممبران کو پیارے خداون تو نے موقع بخشا ہے کہ ہم پیارے خداون تیرے کلام کو سیکھ سکیں اور پیارے خداون تجھے جلال دے سکیں. پیارے خداون جو بھی ہم بات کریں، جو بھی پیارے خداون تیرے کلام سے ہم گفتگو کریں، پیارے خداون اس کو بڑے آسان طریقہ سے سنیں، اس پر عمل کرنے والے بن، اور پیارے خداون کسی قسم کی کوئی پریشانی کا باعث نہ ہو. پیارے خداون یہ تو عزت اور جلال پائے، ہم سب کو برکت دے پیارے خداون تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے. سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن، قبول کرنے کے لیے گوشتین دل عطا فرما. پیارے خداون میں روح سے بھر اور اپنی روح کا دگنا مسا عطا فرما تاکہ پیارے خداون ہم تیرے حضور جھکیں، تیرے قدموں کی چوکی پر سرنگوں ہوں اور تجھے جلال دے سکے. پیارے یسوع ناصری عقل، دنائی، فہم عطا کر تاکہ جب تک تیرے حضور جھکے رہیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے پیارے خداون تیرے کلام کو سیکھ سکیں، تو پیارے خداون یسوع تجھے جلال دے سکے. یہ سب کچھ تیرے جلالی اور بابرکت یسوع نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاس صاحب، آپ نے پریئر کی. اور میں کہوں گا سسٹر ماریا سے کہ وہ صرف ایک ستائی انترا کورس کا گائیں گی اور اس کے بعد ہم باقاعدہ پھر اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. ہاللیلویا، خدا ان کی تعریف ہو. اے خدا پاک روح آج جنبش تو کر، شول ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. اے خدا پاک پاک آج جنبش تو کر، شول ہر زندگی خالی دامن بھی بھر. ہاللویا 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 ہاللویا. پانی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری، جیسے جنبش تیری، پانی پانی پہ تھی پانی پہ تھی جیسے جنبش تیری، جیسے جنبش تیری، انبیاء پر بھی تھی بھی تھی روح کی بارش تیری، بارش تیری، انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری، روح کی روح بارش کی تیری، بارش تیری، روح کی بارش تیری، تو کر وہی جنبش بارش تو تو کر، کر، چھولے ہر جنبش تو کر، زندگی
चूले हर खाली दामन जिंदगी भी भरे, खाली दाम की बारिश तो कर, वही जुम्बिश तो कर, चूले हर जिंदगी खाली दामन भी भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आइएगा बकायदा हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। हमारा टॉपिक है कि पहले फलों की ईद। सबसे पहला सवाल है, क्या अहद जदीद में, क्या नए अहदनामे में आज भी पहले फलों की ईद होती है? तो कोई भी खुदा का खादिम पास्टर फयाज साहब है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बताएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जी अभी आप शुरू करें, मेरी इसमें तैयारी नहीं है अभी, तो आप शुरू करें। अभी हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर हम स्टार्ट करेंगे। सिस्टर मारिया इस पे हमें बताएंगी कि क्या पहले फलों की ईद जो है हम पर भी फर्ज है कि हम उसको आज पूरा करें। जी, खुदा के कलाम में जो कि यहाँ पर पुराने अहदनामे में भी पढ़ते हैं पहले फलों की ईद के बारे में, तो नए अहदनामे में भी उसमें दई की भी आ जाती है, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर हम पहला दूसरा ग्रंथियों देखें तो वहां पर उसके 9वें बाब की 7वीं आयत से लिखा है कि जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों का अजीज रखता है। अगर लिखा, खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुम हमेशा हर चीज काफी तौर पर ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा, उसने कंगालों को दिया, उसकी रासबाजी अब तक कायम बाकी रहेगी। तो अगर हम देखें तो पहले फलों की ईद में, क्योंकि पुराने अहदनामे में जो इसके बारे में लिखा गया है कि वो पहले फल, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये ईद जो कि फसल का पहला पूला हिलाए जाने वाली या नजर की कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता था, तो सोख्तनी कुर्बानी या फसली हदिये के तौर पर। तो हम नए अहदनामे में भी देखते हैं कि मतलब अपना हदिया जो है गुजरानते रहे कलीसिया के बारे में। अमाल की किताब में भी अगर देखें तो वहां पर भी एक जोड़े के बारे में जिक्र है कि उन्होंने भी खुदा के हुजूर में गुजराना चाहा, उसके लिए मुकर्रर किया लेकिन झूठ बोला था। तो और भी हदिया जात अदायगी के बारे में कलाम फरमाता है कि जिसका 10वां हिस्सा खुदा के हुजूर में गुजराना है। तो मैं इसके बारे में मतलब यही, मेरी ज्यादा इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहूंगी कि जो पहले फलों की ईद है उसके लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में या हमारी आमदनी में जो हम कमाते हैं, अगर हम खुदा के हुजूर में खुदा का हिस्सा जो रखते हैं वो हम खुदा के हुजूर में गुजरानते हैं, तो ये हमारे जिंदगी में खुदा ने लागू किया है, ये हुक्म है। और हमें जरूरी है कि हम खुदा के हुजूर में अपनी दया की गुजराने, ताकि खुदावंद के घर में वो मौजूद हो और इससे खुदावंद के घर के काम के लिए और बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल किया जा सके। तो आगे अगर कोई दूसरा डिस्कस करना चाहता है तो जी मैं पास्टर साहब से कहूँगा, पास्टर सिद्दीक साहब से, कि वो इसमें रहनुमाई करेंगे।
पुराने अहदनामा में इस तलक से काफी मालूमात है, लेकिन नए अहदनामा में आकर बहुत वजाहत के साथ इसके बारे में नहीं बताया गया कुछ भी। जहाँ तक मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये करंथियों 15 बाब, पहला करंथियों 15 बाब की 20 आयत में लिखा है। आइए हम उसकी तलावत करते हैं, पढ़ते हैं उसको। यहाँ पर खुदा हमें इस तलक से क्या सिखाते हैं। 15 बाब की 20 आयत से, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी होगी। यानी ये पहला फल जो बताया गया है, इसके ईद के साथ तो मेरा ख्याल नहीं कोई ताल्लुक बनता, लेकिन ये पहला फल बताया गया है कि जो मुर्दों में से जी उठा है, जो सो गए उनमें पहला फल यीशु मसीह है। ये खासकर ईद पेंतिकोस्त के तलक से भी बात कही गई है। ज्यादा मुझे इसके हवाला जात नया अहदनामा में नहीं मिले। मैं मजीद इस पर डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका ज्यादा नया अहदनामा में कोई हवाला अभी तक ऐसा नहीं मिला। मारिया ने बेशक रज़की के तलक से, हदिया के तलक से बताया है, लेकिन ये वो फल नहीं है जिसका हम ईद के तलक से मनाते हैं कि पूला खिलाया जाता था और वहां पर वो ईद मनाई जाती थी। सात सबत जो थे वो इसको मनाया जाता था। लेकिन नए अहदनामे में मुझे इसका कोई ऐसा हवाला सामने नहीं आया। मेरे पास टाइम भी नहीं था इसकी तैयारी करने के लिए। सॉरी फॉर दैट कि मैं इस पर मजीद बात नहीं कर सकता। मैं सीखूंगा आज, अगर कोई अच्छा गाइड करे, चलो मुझे भी सीखने को मिलेगा। यीशु मसीह आपको बरकत दे। जी भाई कमर। जी पास्टर कमर साहब, हम सुन सकते हैं? पास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने इसमें तो शायद आप सब ने थोड़ी थोड़ी स्टडी की हो, लेकिन मैं इतना मसरूफ था कि मैं इसके बारे में स्टडी नहीं कर सका हूँ आज। तो भाई सिद्दीक साहब ने, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो कुछ इन्होंने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है और शेयर किया है हमारे साथ, के वाकई कलाम मुकद्दस में पहले फलों के मुतल्लिक तो हमें इतने हवालाजात नए यादनामा में नहीं मिलते। लेकिन जो अगर हम इसको पढ़ें, रोमियो 8:23, और जैसा कि पादरी सिद्दीक साहब ने ये पढ़ा है, पहला करंथियों 15:20, तो मुकाशफा 14:4 में अगर हम देखें तो वहाँ पहली क़यामत के बारे में जिक्र है। तो पहली क़यामत के बारे में जिक्र है। तो अगर हम उसमें भी देखें तो पहले फलों की ईद के बारे में कोई बात हमें कलाम मुकद्दस में वाज़िया तौर पर से नहीं मिलती है। तो हम पुराने अहदनामा से तो सब कुछ वाज़िया तौर पे बात मिलती है, लेकिन नए अहदनामा में पहले फलों की ईद के मतलब हमें किसी किस्म का कोई लेसन नहीं मिलता। जी जी सिस्टर नुसरत, आप क्या कहेंगी? Okay. Grace be with you all, my brother and sister in Christ. As Brother Sadiq said and Brother Crummer said, there's no indication in the New Testament, and there's no indication given it to us by Jesus Christ that we should celebrate
the first fruit. And first fruit is meaning to us, is in the Old Testament. God said, every first thing belongs to me, like all your livestock, or your animals, and your fruits and the grains, and even your first born child belongs to me. That was indicated to the Old Testament. But in the First Testament, when we comes, there is not the it is the feast of the Lord, but if it's spoken to Moses, that Jesus would have said something, but like I said, we all don't know. We did not get any of the PowerPoint from the New Testament that Jesus recommended us we celebrate. But what we celebrate the resurrection on the first fruit days, because Jesus became our first fruit when he was risen from the dead, and he is living and he is the light. So he came on to the first day of the week, which is this Sunday. Sunday is the first day where God said, let there be light. So the light was separated from the dark. So we celebrating the light of the world became alive. So then in him, we celebrate that day, that in him, we become the light of the world. So we actually celebrate, we call in a Punjabi, Eid-e-Pashka. So that is the resurrection day. We celebrate the feast. That's how we celebrate the feast of the first fruit feast, as a resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead and ascended into the heaven. That was after the resurrection day. But on the first fruit, God marked on that there, like, look, I become the first fruit from the dead. That has no mark on you. So if you walk like me, you can be the first fruit. You can be like me. You can be resurrected from the dead. So that is all I know. If I did say right, you guys, my brothers are more educated than me. So that's all. Thank you guys. God bless you. सिस्टर जी, अगर हम मुकाशफा की किताब 14 बाब और उसकी चौथी आयत में हम देखें तो वहाँ लिखा है, ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, लेकिन इसमें भी ईद के तल्लक से ये बात नहीं है। चलें, वो हम उसमें बाद में बात करते हैं, ये हमारा उसमें टॉपिक नहीं है। हम भाई फयाज के पास जाते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, वो हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पहले फलों के इसके मुताबिक जो है वो दें कि आप क्या कहते हैं। तो भाई फयाज, अगर आप रेडी हैं तो आप बताएं हमें अब। जी सिस्टर जी, जैसे शुरू किया मारिया ने, तो बहुत अच्छा शुरू किया। जो खरूज की किताब में से हवाला है, हिस्ना किताब में हवाला है, अखबार में है, और सारे पास्टर्स बैठे हैं, खुदा के खादम बैठे हैं, और सब ये जानते हैं कि वहाँ पर जो पुराने अहदनामे में कहा गया कि हम पहले फलों की ईद मनाएं, उसके बारे में कुछ ज़ाब्ते भी लिखे हैं, वो हम स्टडी बाइबल में से कर सकते हैं। और पहले फल जो पेश करना है खुदा की हुजूरी में हदिया के तौर पर है। और हम पैदाइश में हम देखते हैं कि कायन और हाबिल ने जब अपने हदिया जात खुदा के हुजूर में पेश किए, उसमें उन्होंने अपने पहले फल हाबिल ने पेश किए अपनी खेती बाड़ी में से, इस तरह कायन ने अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ हदिया खुदा के हुजूर का जराना। और फिर हम देखते हैं जब मुकद्दस मरियम जब लेके जाती है खुदा यीशु मसीह को हैकल में, यहूदी रवायत थी कि अपने पहलोठों को, अपने पहले फलों को खुदा के हुजूर लेकर आए। मुकद्दस मरियम भी अपने बेटे को हैकल में लेकर जाती है खुदा यीशु मसीह को। और मैं समझता हूँ ये जो भाई सदीक ने हवाला दिया था वो बहुत पावरफुल था
दूसरा करंथियों उसका 15 बाब उसकी 20 आयत कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। और इस तरह सिस्टर नुसरत इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जो रेजोरेक्शन है, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना है, ये हमारे लिए हर तरह से ईद है। ईद क्या होती है पहले हमें ये समझना है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो हम जब नेट में भी लिखते हैं, हम लिखते हैं फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। फीस्ट कैसे मनाई जाती है, ईद कैसे मनाई जाती है, उसमें हमें खुशी इत्मीनान और बहुत सारी चीजें, और इसके साथ साथ जब हम नए कपड़ों की किस्म से बात करते हैं, फिर हम अपने रूहानी तौर पर बातों में जाते हैं, नए दिल की बात करते हैं, नई इंसानियत की बात करते हैं, नई जिंदगी की बात करते हैं, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तब पाकला में लिखा है कि जब तक दाना मरता नहीं है वो नया फल और नया फ्रूट नहीं लेके आता। और हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर खींच दिया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है। उसका जी उठना, उसका मसलूब के जिंदा हो जाना बहुत बड़ी ईद है, बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। और इसी में हम ईमान की मजबूती पाते हैं। यही हमारा ईमान का जो सारा हासिल है कि मसीह जो है हमारे लिए पैदा हुआ, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए आसमान पर चढ़ गया, हमारे लिए दोबारा आएगा। यही हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये पहले फलों की ईद। बेशक ऐसा ईद का वर्ड नहीं यूज हुआ, लेकिन हम रूहानी तौर पे इन सेंस दैट वी सेलिब्रेट इट, हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन ऐसे ना ऐसे लफ्जी तौर पर ना ले, थोड़ा सा इसको रूहानी तौर पर इन सेंस दैट वी सेलिब्रेट फीस्ट ऑफ रेजरेक्शन, यीशु के जी उठने की ईद हम मनाते हैं, और वो पहला फल है। और इस तरीके से हम इसको मैं समझता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं। थैंक यू सिस्टर जी। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपने सबने अच्छा बोला, लेकिन मेरा जो मैं आप लोगों की बात से समझ पाई हूँ, वो शायद पहले फलों की ईद को आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज है, जिस वजह से आप, मेरा ख्याल है आप इसको सही कर नहीं पा रहे, या क्या है। पहले फलों की ईद का मतलब ये है कि मतलब खुदावंद की हजूरी में वो तमाम ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती हैं, उनको खुदावंद की हजूरी में लेकर आना। सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है, अब उस बात को छोड़ दें कि वो जो उस ज़माने में क्योंकि फसलें होती थी, तो इसलिए वो कहते थे कि गंदम का पूला लेकर आओ, या पहले फल लेकर आओ, या भेड़-बकरियाँ लेकर आओ। और ये हमने पीछे भी बात की थी कि पहले फल का मतलब वो तमाम ब्लेसिंग्स जो खुदा हमें देता है, बिना फोन उसमें से कुछ हिस्सा हम जो है वो खुदावंद की हजूरी में लेकर आएं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या जो मसीही लोग हैं उन पर ये फर्ज है कि वो उन सारी ब्लेसिंग्स को जो वो रिसीव करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो खुदावंद के लिए लेकर आए। पहले फलों की ईद का मतलब ये है, आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें कि वो तो खुदावंद की हजूरी में लेकर आते थे ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत अजलाल मिले। जब हम खुदावंद की हजूरी में कोई चीज लेकर आते हैं तो खुदावंद की ताजीम करते हैं। जैसे कि मिसाल की किताब में लिखा है कि तू अपने पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। सवाल यहाँ पर ये है हमारा कि क्या हम जो मसीही लोग हैं उन पर किस तरह से फर्ज है कि वो खुदावंद की हजूरी में वो पहले फल जो वो किसी भी ब्लेसिंग की शक्ल में है, वो खुदावंद की हजूरी में लेकर आएं, और किस मकसद के लिए वो लेकर आएं, और क्या क्या जो है उनसे जो है वो काम होते हैं। अगर आप पहले फलों की बात जो है कहते हैं कि पहले फल तो हमारे नए अहदनामा में है ही नहीं है, तो फिर हम जो खुदा के खादिम लोग हैं, हम फिर लोगों को क्यों कहते हैं कि अपनी नजरें और अपनी कुर्बानियां खुदा उनकी हजूरी में लेकर आओ? क्यों आप उनको कहते हैं कि दयकी देना आप पर फर्ज है, कि जितना आप बीज बोगे उतना बीज आप उतना ज्यादा काटोगे? सवाल यहाँ पर ये है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको समझ पाए हैं तो अब इस पे हम बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। वो आप बात ठीक कर रहे हैं कि पुराने अहदनामा में जिस तरह से इसको सेलिब्रेट करने का तरीका बताया गया है, नए अहदनामा में उस तरह से जो है वो स्पेसिफिकली नहीं बयान किया गया, लेकिन ये बयान किया गया है। क्यों? अब इसको इस नज़र से देखें कि क्या हम मसीही लोगों को वही जो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो खुदावंद की हजूरी में लेकर आनी चाहिए, उनमें से कुछ हिस्सा खुदावंद की हजूरी में लेकर आना चाहिए हमें कि नहीं, कि या हम कहें कि नहीं हम पर फर्ज नहीं है। तो मेरे अजीजों,
पहले जो नए अहदनामा में टर्म जो पहला फल इस्तेमाल की गई है वो अगरचे उस तरह से नहीं बयान की गई जिस तरह से पुराने अहदनामा में बयान किया गया है, यानी कि हैकल में देना या उसमें लेकर आना, इस तरह से उस तरह से उसको यानी कि नहीं बयान किया गया, लेकिन वो मौजूद है वो कॉन्सेप्ट हमारे उसमें नए अहदनामे में। क्योंकि हम अगर इसको पहले फलों को देखें तो इसका अलामती तौर पर अगर हम ये देखें तो नए अहदनामे में ये पहले फल उन तमाम बरकत को हासिल करते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको ख़ास ये बरकत जो है सबसे पहले मिली हैं और ख़ास बरकत खुदावंद की तरफ से हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इसराइल खुदावंद का पहला फल है। हम कहा कि हम वो खुदावंद का इकलौता फल है, यानी कि खुदावंद का इकलौता नहीं, वो खुदावंद का पहला फल है, क्योंकि बनी इसराइल जो है वो इकलौता नहीं है, हम गैर कौमें भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा उसको परोस रसूल जो है वो पहला पीड़ा भी बोलता है। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठने के लिए पहला फल है, और इस बात की निशानदेही है कि हम सब जो उसके मानने वाले हैं, हम जो ईमानदार हैं, वो भी पहले फल हैं और हम भी उसी तरह से मुर्दों में से जी उठेंगे। इसी तरह से पाक रूह के फल हैं जो हमें मिलते हैं। तो आइए अब हम ये बात करते हैं कि क्या पहले जो नया अहदनामा में इसमें हम किस तरह से जो है खुदा उनकी हजूरी में अपने पहले फल ला सकते हैं और किस मकसद के लिए जो है वो लाए जाते हैं, किस मकसद के लिए जो है हम लोगों को कहते हैं। तो उसमें नए अहदनामे में बड़े वाज़ेह तरीके से मुख्तलिफ जगह पर पौलुस रसूल बयान करता है कि जो चर्च की खिदमत करते हैं उनके लिए पहले फल लाए जाएं, उनको खुदावंद की देखें। जो खुदा ने पहले फलों की ईद जो मुकर्रर की थी, जो भेड़ बकरियां और वो फल लेकर आते थे, तो क्या ख्याल है कि वो खुदा नीचे आके खाता था उनको? वो किसके लिए थे? वो उन काहिन, उन लावियों के लिए थे जो खुदा उनकी खिदमत करते थे, वो उनके लिए थे, वो खुदा के लिए नहीं थे। खुदा जमीन पर आकर उनको नहीं खाता था। आज भी वो कॉन्सेप्ट है। आज भी जब हम खुदा उनकी हजूरी में लेकर आते हैं, अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम पर फर्ज है कि हम लेकर आए। और हम ये जानते हैं, मुझे आज भी याद है कि हम जब गांव में होते थे तो हमारी अपनी गांव में हमारी अपनी ज़मीनें हैं, हमारे अपने बागात हैं और हमारे भेड़ बकरियां, हमारे जानवर भी हुआ करते थे। और हमारी माँ जो है वो जो पहला पेलोठा जो बर्रा होता था वो ज़रूर चर्च में लेके जाया करती थी और चर्च में जो है वो उसको वो पेश करती थी। मुझे आज भी याद आता है कि हमारी माँ ने एक मुकर्रर किया होता था कि ये बर्रा जो है, ये जो बकरी का बच्चा है, इसको मैंने चर्च में देना है। तो मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वो किस लिए? वो खुदा के लिए होता था कि जो खुदा की खिदमत, जो अलतार पर खिदमत कर रहे हैं, जो हैं मज़बा पर खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए है। तो पौलुस रसूल जो इसको बयान करता है कि ये जो पहले फल, हम जो ब्लेसिंग्स जो हमें मिलती हैं, हम उनको जो लेकर आते हैं, वो किसके लिए लेकर आते हैं? जो खिदमत करने वाले हैं, जो चर्च की खिदमत करते हैं। जैसे कि पहला तीमुथियुस उसके 5 बाब उसकी 17 से 18 आयत में हम देखते हैं, जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यानी चर्च में जो खिदमत करते हैं उनको देना हमारा फ़र्ज है। वो चाहे हम पहले फलों के उसमें जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिले उसमें से कुछ हिस्सा हम उनकी खिदमत में पेश करें। और इसी तरह से पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 14 आयत में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 14 आयत में देखें, इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। तो अगर हम उनको अपने ये पहले फल और ब्लेसिंग्स अगर हम उनको पेश नहीं करेंगे, नज़र नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से गुजारा करेंगे? वो कहाँ से मतलब जो है वो खिदमत का काम करेंगे? जो हम हमारे लिए जो पहले फल पेश करना है, उनका मकसद ये है कि खुशखबरी के फैलाव के लिए दिया जाए। और दूसरी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बयान की है वो ये है कि ज़रूरतमंदों को दिया जाए। ज़रूरतमंदों के लिए जो है हमें जो है वो ऑफरिंग्स वो लेकर आनी है। वो ब्लेसिंग्स जो खुदा ने हमें दी है, हमें उनके लिए लेकर आनी है। जिस तरह कि पहला कुरिन्थियों उसके 16 बाब उसके 2 आयत में हमने पीछे भी इस आयत को पढ़ा था
کہ पौलुस रसूल उनको कहता है कि तुम लोग हफ्ते के पहले दिन ऐसा किया करो कि अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा निकाल कर जो है वो अलग कर लिया करो, यानी उसको खुदा के लिए मुकर्रर कर दिया करो, ताकि जब मैं आऊं तो चंदे न जमा, यानी कि वक्त ज़ाया ना हो, बल्कि ऐसा हो कि हमारे पास पहले से पैसा मौजूद हो। मतलब यहाँ पर जो है हमें खास वो अमाउंट जो है वो बयान नहीं की गई इसमें नए अहदनामा में, लेकिन नए अहदनामा में हमें अपनी मर्जी से खुशी से जो है वो देने के लिए जो है हमारे लिए जो है वो पाबंदी नहीं है, लेकिन हम पर ये फर्ज है कि हम खुशी से दें। और ये भी वो कहता है कि अपनी आमदनी के मुताबिक आप कुछ हिस्सा मुकर्रर कर लो जो खुदावन के लिए आप लेकर आओ। तो ये उस पहले फलों को ही रिप्रेजेंट करता है कि हम उन ब्लेसिंग्स में से कुछ हिस्सा निकाल कर खुदावन के लिए अलग कर दें और उसको हम खुदावन के मज़बा पर लेकर आएं और काहिन को या खादिम को हम दें। और इसके अलावा रोमियो उसके 12 बाब उसकी 1 आयत में भी वो कहता है कि अपने बदन जो है कुर्बानी के लिए पेश करो। यही खुदा उनके हजूर सबसे ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी है कि हमारे बदन पाक और साफ होने चाहिए। और इस तरह से मतलब जो नए अहदनामा में है उसमें जो देना है उसका मतलब है कि किसी मकसद के लिए देना और पाकरू की हदायत से देना, जैसे खुदा यीशु मसीह और पाकरू आपको हदायत देता है उसी तरह से दें। खुशखबरी फैलाने के लिए दें, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दें, ये बाइबल में ये नए अहदनामे में लिखा है, और खुशी से दें। और क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। लाचारी से ना दें, मजबूरी से ना दें, जो भी लेकर आए। जिस तरह से कि उस बेवा ने 2 दमड़ी जो डाला था तो खुदा यीशु मसीह ने उसको सबसे ज्यादा पसंद किया था, इसलिए कि वो बड़ी खुशी के साथ वो सब कुछ देने आ गई थी जो उसके पास था और उसने इस बात की परवाह नहीं की थी। तो खुदा यीशु मसीह ने उसके हदीये को कबूल किया था कि वो उसको लेकर आई थी। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा ग्रंथियों उसका 9 बाब, तो इसको हम पूरा ये हवाला पढ़ लेते हैं जिसका मारिया ने जो है वो जिक्र किया है कि दैयकी के बारे में जो है पौलुस रसूल क्या कहता है। दैयकी के बारे में पौलुस रसूल जो है वो ये कहता है, वो बेशक पुराने अहदनामा में जो है 10वां हिस्सा लिखा है, लेकिन नए अहदनामा में उसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है। नए अहदनामा में वो कोई लिमिट मुकर्रर नहीं करता। नए अहदनामा में वो ये कहता है, हम पढ़ते हैं उसकी 6 आयत से, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनांचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकद्दसों के एहतियाजें रफा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और उन सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। तो मेरे अजीजों, पहले फल यही पहले फल हैं जो हमने लेकर आने हैं। यही वो पहले फलों की ही बात करता है, खुदावन की हजूरी में लेकर आना, क्योंकि वो कहता है कि जो मजदूर है अपनी मजदूरी का हकदार है। यानी अब अगर हमने खादिम को हम नहीं देंगे या उनको चर्च के लिए हम नहीं देंगे, खुशखबरी के फैलाव के लिए नहीं देंगे, गरीबों की मदद के लिए नहीं देंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे हमारे पहले फल। इसका मतलब है कि हम खुदावन की ताजीम नहीं करते। हमें खुदावन की ताजीम इस तरह से करनी है, उस तरह से वो बेशक उसमें। और मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं खुदावन ने किस तरह से, खुदा के रूह ने मेरे पर ये बात
वाजे की कि खुदावंद ने कहा कि जब ईद फसा मनाई जाती है तो बर्रा कुर्बान किया जाता है। जब बर्रा कुर्बान किया जाता है तो उसका लहू जो है उनके दरवाजों पर लगाया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब बर्रा ज़बह हुआ तो उसका बर्रे का लहू हम अपने ऊपर लेते हैं। बनी इसराइल पर क्या हुआ कि वो उस वबा से, उस तबाही से, उस हलाकत से बच गए जिस जिसके घर में वो बर्रे का लहू था, वो उस तबाही से बच गए जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा। तो इसी तरह से जब हम खुदा यीशु मसीह का बदन और खून लेते हैं और खून अपने ऊपर लगाते हैं, उससे पाक और साफ होते हैं, तो फिर जो है हम हर किस्म की मुसीबत से, बला से बच जाते हैं। उसके बाद ईद आ जाती है, 7 दिनों की ईद, बेखमीरी की रोटी। तो बेखमीरी रोटी का मतलब क्या है? बेखमीरी रोटी का मतलब ये है कि हमें फिर अब खुदावंद में पाक और बेऐब जो है वो जिंदगी गुजारनी है। हमें जो है मतलब खमीर से पाक जिंदगी गुजारनी है। जिस तरह से पौलुस रसूल कहता है कि हर किस्म के खमीर को अपने अंदर से निकाल दो और बदी के खमीर को अपने अंदर से निकाल दो और अपने आप को पाक और साफ कर लो। तो वो जो बेखमीरी रोटी की ईद है, उसका मतलब है कि हम खुदावंद की हजूरी में पाकीज़गी और रास्तबाजी से चलें। और दूसरी बात आगे आ जाती है पहले फलों की ईद। जब हम उस पाकीज़गी में चलते हैं, उस रास्तबाजी में चलते हैं, तो फिर हम पहले फल खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं। फिर वो जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, हम खुदावंद की हजूरी में लेकर आते हैं, तो वो काबिल कबूल होती हैं। जिस तरह से अभी भाई ने काइन और हाबिल की मिसाल दी, तो काइन भी फल लेकर आया था। जब हम बचपन में थे ना, तो हम ये कहानी सुना करते थे, तो हम ये समझते थे, हमें ये कहा जाता था कि वो जो काइन था, काइन और हाबिल जो है, जब वो लेकर आए थे अपनी अपनी कुर्बानी, तो वो जो काइन जो किसान था, वो जो फल लेकर आया था वो गले सले फल थे, तो इस फल थे, इसलिए जो है उसके फल कबूल नहीं हुए थे। लेकिन जब हमने बाइबल पढ़ी तो हमें पता चला कि गले सले फल का तो इसमें तो जिक्र ही नहीं है। तो क्यों खुदावंद ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की थी? हालांकि वो भी अपने पहले फल ही लेकर आया था, जबकि उसका भाई हाबिल जो है वो पेलोठे लेकर आया था। तो क्यों उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी? क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, उसका दिल बदी से भरा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे खुदा उसको क्या कहता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिब आ। क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो खमीर से भरा हुआ था, उसके अंदर बदी शामिल थी, उसके दिल में बदी थी, उसके दिल में गरूर था। इस वजह से उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी। जबकि वो भी पहले फल ही लेकर आया था और वो अच्छे अच्छे फल लेकर आया था, ये नहीं कि वो अच्छे फल नहीं लाया था। और जबकि हाबिल की कुर्बानी जो थी वो कबूल ठहरी, वो मकबूल ठहरी, क्योंकि वो साफ दिल के साथ, साफ नीयत के साथ खुदावंद की उसको ताज़ीम करने के लिए लाया था। वो बड़ी ही खलूस नीयत के साथ खुदावंद को इज्जत और जलाल देने के लिए अपनी कुर्बानी लेकर आया था। और पहले फलों की कुर्बानी वो लेकर आया था, जो पहला पेलोठा उसको मिला था भेड़ बकरियों में से, उनमें से वो लेकर आया था। तो ये जो थी उसके लिए मकबूल ठहरी। तो क्या मकसद है ईद फसा का? कि हम उस लहू का अपने ऊपर लें। बेखमीरी ईद का कि हम हर किस्म के खमीर से और बदी से पाक हों। फिर हम जब खुदाम की हजूरी में अपने नजरें और कुर्बानियाँ और हदिया जात लेकर आते हैं, वो खुदाम की हजूरी में मकबूल ठहरते हैं। फिर उसके बाद जो है वो खुदा उनको कबूल करता है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे हम बात करेंगे ईद पेंतिकोस पे। तो फिर खुदा का रूह जो है वो हम में आता है और सकूनत करता है, क्योंकि खुदावन का रूह वहाँ पर नहीं ठहरता जहाँ पर गुनाह है। जहाँ गुनाह है उस बदन में वो नहीं ठहरता। इसलिए खुदा के रूह को हमारे अंदर रहने के लिए हमें पाकीज़ा होना ज़रूरी है। तो पहले फलों की ईद जब खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरती है, तो इसका मतलब है कि हम उसके हजूरी में मकबूल हैं, हम उसके हजूर में मकबूल हैं और वो हमें पसंद करता है, क्योंकि वो हमारी कुर्बानियों को पसंद करता है कि वो अच्छी नीयत के साथ उसके हजूरी में लाई गई हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। जी
اب اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس ریفرنس سے پہلے پھلوں کی عید کو، تو اب ان کے پاس ٹائم ہے، آپ باری باری آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی بھائی صدیق، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صدیق سے شروع کرتے ہیں. جی بھائی فیاض، آپ کچھ کہیں گے؟ تھینک یو سسٹر جی. آپ نے سارا کچھ بہت اچھا بتایا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ وہیں سے کھائے گا، اور جو چرچ کی یا کلیسیا کی احتیاجیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چندے ادا کرنے چاہیے یا دایکی دینی چاہیے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، میں جب ادھر لاہور جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں چرچ میں، اٹرنل لائف چرچ میں، پاسٹر شوکت فضل کے پاس، پاسٹر انور فضل کے پاس. لوگ اپنی سیلری لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے خداوند کا حصہ نکالتے ہیں، آ کر چرچ میں دیتے ہیں، تاکہ اس سے چرچ کی خدمت اور کلام کے جب پھیلاؤ ہے اور بھی زیادہ ہو سکے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور آپ نے یہ کہا ہے، اور اس میں بہت سارے حوالہ جات آپ بتا رہے ہیں، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ٹاپک کو. تھوڑا سا میں کل لاہور سے آیا ہوں، تھوڑا تھکا ہوا بھی تھا، آج بھی کافی بزی، اس لیے میں تھوڑا سیکھ بھی رہا ہوں، اور آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، دوسروں سے بھی سیکھا ہے. اور جو حوالے اپنے گرنتھیوں میں سے دیے ہیں، دوسرے گرنتھیوں میں سے دیے ہیں، سارے ہی بہت سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں ملاکی کی کتاب میں سے ایک حوالہ بتانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا، سارے ہی جانتے ہیں، اور یہاں پر بہت اچھا 10 آیت ہے اس کی. 10 آیت میں پڑھوں گا، 10 آیت سے پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے کہ پوری یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اور آگے کچھ وعدے ہیں، 11ویں آیت میں، 12ویں آیت میں، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے طاقتستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا. رب الفاظ فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے. رب الفاظ فرماتا ہے. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی دایکی اور اپنی سیلری یا اپنی کمائی یا ایسی چیزیں وہ سب سے پہلے خداوند کی نظر کرتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے ملاکی کی کتاب میں وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے کچے پھل نہیں جھڑیں گے، تمہارے ذخیرے کو ٹڈی نہیں کھائے گی. کہتا مجھے آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دیتا ہوں یا کہ نہیں. اور لہٰذا ہمیں چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے، پہلے خود سیکھنا چاہیے کہ ہم خداوند کے حضور جب ہم کوئی سیلری لیتے ہیں، جب کوئی ہماری ایسی کمائی ہے یا ہماری کوئی ایسی چیزیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم خداوند کا حصہ نکال لیں تاکہ چرچ کی بڑھوتری کے لیے، کلیسیا کی بڑھوتری کے لیے اور کلام کے پھیلاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے. اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے جب ہم اپنی آفرنگ جو ہے خدا کی نظر کرتے ہیں. اور یہاں پر تھوڑی سی جیسے دایکی کی بات ہے، بہت سارے لوگ جیسے ابراہیم، موسیٰ نے دایکی دی. عبرانیوں 7 باب میں اس کے بارے میں حوالہ ہے. ملک صدق جو ہے اس کے جو ہے کاہن کو دیتے ہیں، دایکی دیتا ہے، ابراہیم دیتا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی ساری یہ چیزیں کہ ابراہیم نے دایکی دی. تو جہاں پر جب ہم آفرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو میں نے سیکھا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ ایگری ہوں گے یا بتائیں گے آپ ہمیں کہ آفرنگ میں ہم ضروری نہیں ہم دایکی دیں یا 10% دیں، ہم اسے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اگر خدا کسی کو ایسی ہمت توفیق دے، اسے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اور جہاں ہم اس میں 2-3 اس کی شکلیں بتائی گئی ہیں، جیسے ہم کھانا دے سکتے ہیں کسی غریب کو، ہم راشن دے سکتے ہیں کسی غریب کو، ہم انہیں کلوتھس دے سکتے ہیں، فوڈ دے سکتے ہیں. ہم جیسے جو چیزیں ہیں
वो पनाह दे सकते हैं। कभी कभी हम किसी को अपने घर में रख सकते हैं, कोई मेहमान आ जाता है, कोई मुसाफिर आ जाता है, उसको रख सकते। इसकी बहुत सारी ऐसी शक्लें हैं, लिहाजा हमें चाहिए करें। और पाक कलाम में लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिहाजा हमें कभी भी अपनी मुट्ठी को जो है बंद नहीं करना चाहिए खुदा की खिदमत के कामों के लिए और गरीबों के लिए। और इमसाल में लिखा है कि मुबारक है जो मस्कीन का ख्याल करता है, जो मस्कीन की परवाह करता है, मुसाफिर की, यतीम की, बेवा की। ऐसी बहुत सारी बातें पाक कलाम में लिखी हैं। सिस्टर जी, बरकत मिली है, आपने जो कुछ शेयर किया है उससे मैंने सीखा है, थोड़े से और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो खुदा आ जाए और हमें सीखने का मौका देगा और हम खुदा उनसे और आप सबसे मिलकर एक दूसरे से बरकत पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। मैं इसके बारे में ये जो मुझे अभी पता चला सिस्टर की बातों से, कि सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम अपने पले फलों को खुदा उनके पास लेकर आए, क्योंकि ये लफ्ज जो है ना ये यूज मतलब इतना क्लियरली नहीं यूज हुआ, लेकिन ये है कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑफरिंग एंड टाई की बात करें कि हम खुदा अपने मतलब अच्छे दिल से हम खुदा उनकी हुजूरी में जो कुछ भी लगे, जो कॉन्सेप्ट हमें मिला है मतलब केन और एबल से कि God only loves those who are cheerful giver and who are giving things from the heart. क्योंकि हमारी जो सारी बाइबल हमें सिर्फ यही टीचिंग करती है कि you give and you will be given. You give from your income, you give from your first fruits, you give from your heart, mind, soul. You give yourself to serve the others. So when we serve the others, their needs in the time of their needs, in the time of this whole Bible's concept is like we are serving others in any area, by shelter, by helping them in education, by giving them a clothes, by enlightening their spirit, when they are in a depressed mode, when we are empathetic towards other people, when we put our feeling, when we feel their feeling in ourselves, put our foot into their shoes and feel how they are feeling in the time of need. So giving is like that's like the first fruit. The sister is we got the concept talking about the feast of the first fruit. That is why we said the resurrection. But if you could have asked how you can just say metaphorically the offering and the tithe is the first fruit, we could have said that. But I'm not blaming anybody's, but whatever, we got the concept. So the other thing is that Jesus, when we look in the Old Testament, there was God commanded the Moses that asked them to bring the first fruit to me. And they set up the 10% of the income, which is called tithe. So there was a 3 type of tithe. First tithe was to give it to the Levi, which is the priest, the Lavi priest. Why? Because why 10% for them? Because they did not have any allotment. They did not given any inheritance in the promised land. There was no land was given into that tribe. They were only to do the priestly duty. So for that, God wanted them to pay the 10% towards the Levi, so they can. There's like an expense for the temple and the sacrificials and so many things. And the other type of tithe was like God told them, take the 10% from out of I'm talking about the tithe now. So take the 10%, which is the 10% dayaki. Sorry. So take the 10% out of your income every year, put it on the side, and every year go where the God will choose the place for you, and you celebrate that 10% between you and your family member and enjoy that 10%. And the third 10% was third tithe was God telling the nation of Israel that you give to the 10% towards the foreigner, towards the poor, towards the orphanage, towards the widows. So that's the 10%. That concept is still in the New Testament. When we look into the Jesus came, and Jesus make it more lighter than that. He did say in Matthew 23:23, when he said wow to the Pharisee, when he said he rebuked them, he said, you remember to pay
I'm talking that how God converted the tithe into the other way. Okay, the tithe and the 10% of giving is still there, but he's telling them, you remember to pay the 10% on all your spices, but you don't remember to show mercy towards others. You don't remember to follow God with the faithfully, and you forget the most important part, but you remember the least important part, which is common part. You remember it's better if you should keep both. You should practice both. You should pay the tithe, which is, he did not say you pay the 10%. He said you must pay, which is you keep both by paying, treating other people with the mercy and love and the grace, and the following God with the faithfully from your heart. And also you pay, which is necessary to pay by the God, because how we are here to give towards the other. So how we will be happy, because this is the cycle of the blessing of the God completed in a God. When we give somebody's, like there's another person who's in a need and we have it, and we are giving out of our heart, with our good heart towards the other person, then it goes up into heaven, and then the blessings come from heaven for us when we give, and it shall be given it to you. So Jesus is saying that, when he given the example of this, the widows who paid the 2 coins, copper coins, which is compared to 2 copper coins is for nothing, but she brought it from her cheerful heart. So God, look the cheerful heart. Of course, there's a when Moses, when the nation of Israel, I'm going out of little bit off of the topic, but I'm going to Hebrews back, when there was like a God never had a desire to have Israel to have a king over them. God was in that mode that they will always accept me made their king, but they did not. They were always distracted. They were always asking for the worldly. They were follow into the worldly system, and they were forgetting the God. So God told Moses, in case if they ask, we need a king to follow the other nation over us, rather than me having a king, tell them the king has his need. So king will take 10% of your things. If you read in a scripture in the Old Testament, how God told the kingly rights, the king has the right. So in order to run the army, where those expense come from us? Where those expense come from for the armies, to run the armies, protect you? It comes from our tax money. Okay. So this is how in the God, we are just bringing whatever. He did not set the, in the New Testament, he did not set the limit of the 10%. He said you can give either, if you are able to give a 10%, you give a 10%. And if you are not, give whatever you can give, but give it out of your heart. And also he said, whoever, so in a second Corinthians 9:6, sister just mentioned that remember that whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So it's like the giving is there, but how we give out of our generous heart, from our heart, that will accept it in the eyes of God. The same way in the Cain and Abel. So God accepted the Abel because he brought it out of his heart, and the other guy the Cain did not. And the same way, when there's so many other contexts in the Bibles, it's the tithe is not mandatory in the New Testament, which is the 10%, but it is there. Give whatever you can give out of your heart, but you always remember, whatever you have it, there's a one portion of the God you have to offer to God, with out of your heart, generously, then you will be receiving from heaven. So that is all I know. Thank you for giving us good knowledgeable stuff, Sister Nasreen. Thank you. God bless you. थैंक यू जी भाई कमर, आप बात करें. सिस्टर जी, आपने
اور پاسٹر فیاض صاحب نے اور سسٹر نصرت نے بہت خوبصورتی سے یہ کلام کو بیان کیا ہے، اور ہمیں سیکھنے کے اور اس سے بہت زیادہ برکت ملی ہے. سو خداوند آپ کو مزید جو ہے برکتوں سے مالا مال کرے. ابھی آپ کو بھی خدا برکات سے مالا مال کرے. جی بھائی صدیق. بھائی صدیق مائک آن کر لیں گے. جی ماریا آپ کیا کہیں گی؟ بھائی صدیق آگے چلیں. ہاں جی، سب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. سسٹر نسرین نے، سسٹر نصرت نے، پاسٹر فیاض صاحب نے، دوسرے پادری صاحبان نے بھی. اور اچھا لگا. ہم پہلے اس سوال کو اصل میں سمجھ نہیں پائے تھے کہ جس طور سے ہم تھے اس طور سے واقعی کوئی بات ایسی نہیں تھی. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ پرانے عہد نامہ میں جو رعیتی کے تعلق سے، پھلوں کے تعلق سے تھا، اس کا تقریباً طریقہ کار ڈفرینٹ تھا، اور وہ 23.3% اس کا مجموعہ بنتا تھا. رعیتی کا ایک لاویوں کا حصہ تھا، ایک ہیکل کا اور عیدوں کے لیے استعمال کے لیے تھا، اور ملک کے غریب لوگوں کے لیے جو تمام ہدیہ جات کا مجموعہ بنتا ہے وہ تقریباً 23.3% تک پہنچ جاتا ہے. لیکن نیا عہد نامہ جو ہے کہیں پر بھی حکم نہیں دیتا کہ، اور نہ ہی کوئی تجویز ایسی دیتا ہے کہ مسیح داعیکی کے اس قانون کو تسلیم کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ کہا گیا ہے. نیا عہد نامہ کہتا ہے کہ ہمیں، جیسے پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 2 آیتیں، جو کچھ کلیسیوں نے 10% کا عدد پرانے عہد نامہ کے داعیکی کے تصور سے لیا، اور انہوں نے اس کا اطلاق مسیحیوں پر ایسے کرنے کی کوشش کی گویا ایک مسیح کی طرف سے اسے خدا کے حضور کم از کم اس قدر ہدیہ نذرانہ ضرور دیا جانا چاہیے. لیکن نیا عہد نامہ جو ہے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نیا عہد نامہ فراخ دلی کے ساتھ دینے کی اہمیت اور فوائد کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں صرف 10% ہی نہیں دینا چاہیے، 10% ہی نہیں، بلکہ اگر ہم اس لائق ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہیے. بلکہ اگر اس لائق نہیں ہے تو کم بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس لائق ہیں تو ہمیں اس سے بڑھ کر دینا چاہیے. وہی شخص بھی 30% بھی دے سکتا ہے. بلکہ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ ایک فیٹ ٹریکٹر کی کمپنی تھی، اس کا مالک جو تھا اس نے جب بزنس شروع کیا تو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں 10% دوں گا جب میرا بزنس رن کرے گا. اس کو بزنس کے حساب سے جب خدا نے اس کے ساتھ کام کیا، خدا نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی، اس کا کام بڑھا تو اس نے بڑھاتے بڑھاتے اپنا حصہ 99% کر دیا، اور 1% وہ خود رکھتا تھا اور 99% وہ خدا کو دیتا تھا، اور پوری دنیا کے اندر اس کی کمپنی جو ہے وہ چل رہی. اور یہ ضروری بات اس طرح سے نہیں ہے کہ مسیح نیا عہد نامہ کو صرف 10% پہ رہیں، بلکہ اس سے اگر قوت ہے تو زیادہ دینے کی کوشش کریں، زیادہ دیں. اگر کچھ نہیں دے سکتے تو بھی اس پہ لاگو نہیں ہے کہ آپ اگر نہ ہو تو 10% ہی دیں. کم دینا کم اہمیت ہے تو کم دیتے، اگر زیادہ ہے تو زیادہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر لاچاری سے نہیں، وہاں پر پرانے عہد نامے میں یہ قانون لاگو تھا، لازم تھا کہ یہ کرنا ہے، لیکن نیا عہد نامہ میں یہ قانون اس طرح سے ہم پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر یعقوب کے خط میں ہے کہ سب سے بڑھ کر تمام داعیکی اور ہدیہ نذرانے خالص طور پر
खुदा की परस्तिश और मसीह के बदन की खिदमत और तरक्की की नीयत से दिए जाएं, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। यानी कि जो हमने अपने दिल में ठहराया हुआ, अगर हमने 20% ठहराया हुआ, 30% ठहराया हुआ, तो उसी तरह से दे कि ये ना सिर्फ अपने आप पर लागू कर लें कि 10% ही देना है, ज्यादा भी देने की ताकत है तो ज्यादा दें, अगर ज्यादा ताकत नहीं है तो कम भी दे दें, तो खुदा नाराज नहीं होता। और इसमें यह कि लाचारी के साथ नहीं देना, बल्कि खुशी के साथ, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुशी से दिया गया फल हदिया खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है। अगर लाचारी से दिया गया हदिया खुदा को पसंद नहीं है। 10% दया की या कुछ भी 20% भी देना लाचारी से खुदा को पसंद नहीं है, बल्कि खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है। जैसे किसी भाई ने या बहन ने मिसाल दी है, एक औरत ने 2 दमड़ी डाला और खुदा का बेटा देख रहा था और उसने कहा कि इसने बहुत डाला, क्योंकि जो कुछ इसके पास था इसने वो सब कुछ डाल दिया। यानी जो कुछ उसने अपने अंदर ठहराया था वो डाल दिया, और उसको यीशु मसीह देख रहे थे। और आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है, हम जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। यस। जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। कम बोएंगे तो कम काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। ज्यादा देंगे तो खुदा उसी तरह से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, कम देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डिपेंड करती है। तो सबने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और सीखने को मिला। मुझे भी बहुत बरकत मिली है आज से इस टॉपिक से, कि हम सबने एक दूसरे के साथ जो बातें शेयर की हैं, एक दूसरे को सीखने को मिला है। और चाहते हैं कि खुदा इसी तरीके से हमें सबको और आगे बढ़ाए, ताकि हम इसी तरह से बाइबल को सीखते रहें और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ जी, मैं इस पे थोड़ा सा कहना चाहती थी कि जब जैसे भाई ने बताया कि भी पुराने अहदनामे में ये ठहरा दिया गया था कानूनी तौर पे, कि उसमें ये कि भी when you look into that, you know, that was like you were under the bondage, you were obligated to give, whether you are poor, whether you are rich, whether you are. So those people were buried under that bondage. So Jesus came to release them in the, he transformed. He did still say that the give, but he said, give whatever you can do. You are not bondage to give a 10% out of everything, but whatever you have it, whatever you put in your heart from your own pure and happy heart, give it to the God. It is there, but you know, the expense are the priests are still there, church expense are still there, everything. But he's asking for all of us to give, but give out of love. Give whatever you can give, how much you can give. If you can give your all, give it all, but give it from your heart. But if you can give only a 5%, give it out of your heart. But do not give it like a भाई ने explain किया है कि मतलब वो दिल में, मतलब ये ना हो कि खट्टे दिल से लेकर आ तू खुदा के पास, कि जब तक तू खुदा की हुजूरी में साफ नीयत से और अच्छी नीयत से, वो तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती जब हम पूरे और सच्चे दिल से दुआ नहीं मांगते, साफ दिल से दुआ नहीं मांगते। जब हमारे दिल में खमीर होता है तो कोई चीज भी पूरी नहीं होती। ये जो गिविंग ब्लेसिंग है वो हमें उस पे रिसीविंग ब्लेसिंग, ये साइकिल है, गिव एंड रिसीव। सो यू गिव आउट ऑफ योर हार्ट whatever you have a desire to give it to God. If you have like a you know, like I said, if you have if you earn like a $10, and if you feel like when I give God $10 out of your heart, you can give it $10, because your reward is in the heaven. Because God said, you know, where's your what you call where's your asset is, there's your heart is. So God wants to have your heart. He wants you to just be a free heart, because when you have when you are running after your asset, when your heart is towards your asset, then you have a death coming onto you. But when you don't put your eyes on your asset, you just think, you know, okay, God gave it to me, I have to give something to God so I can live forever.
So this is how the giving is. So like I said, we are here. We all are needy in some way. We all are. Nobody is without the needs. We all, even the richer, the poor, everybody, we are in the need. But then, we all bring to all our offering, all our sacrifice, all our giving towards the God. We put it there. Whatever we can give, we give it to God. We give it to God because we want to live in forever, and we're going to live peacefully, and we're going to live long life, healthy life. So this is matter of giving too. So thank you. You all we all are getting there where we want to, where God wants us to be. Thank you. Thank you so much. Hmm. आजकल ये बात हमें जरूर ये बात समझनी चाहिए कि कुछ आजकल जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स भी हैं जो मतलब सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं कि मतलब आप जो है वो दैयकी लेकर आओ, आप ये करो, लोगों पर जोर देते हैं कि आपको इस तरह होगा। वो नहीं, आप लोगों को मजबूर ना करें। बेशक कलीसिया का आप पर देना फर्ज है, कलीसिया आपको देती है और खुशी से देती है, लेकिन हमारा जो नया अहदनामा है वो हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाता कि हम कितने परसेंट दें। हम अपनी आमदनी के मुताबिक, अगर किसी शख्स की 2000 5000 सैलरी है तो उसमें से अगर 10% जो चर्च में दे देगा तो अपने घर के अखराजात को कैसे पूरा करेगा। तो इसलिए ये हर शख्स की, हर ईमानदार की अपनी जो है वो नियत है कि वो खुदा की हुजूरी में कितना लेकर आता है, हमें उतना ही कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन हमें लोगों को मजबूर नहीं करना चाहिए। बेशक हमारा देना फर्ज है, हम दें लेकिन खुशी से दें। बात फिर वही है कि हो सकता है कि हम 10% से भी ज्यादा दे दें, तो हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो दे सकते हैं वो जरूर दें, लेकिन जो नहीं दे सकते उन पर भी कोई पाबंदी नहीं है, उन पर कि वो लाजमी 10% लेकर आए। तो मेरे अजीजों, कलीसिया के लिए देना, खुदा के खादमों के लिए देना और ज़रूरतमंदों के लिए देना हम सबका फ़र्ज़ है। और यही पहले फलों का जो मतलब है, वो जो पुराने अहदनामा में है कि पहले फल खुदावंद की हुजूरी में लेकर आओ, यही मकसद नए अहदनामा में भी है और नए अहदनामा में भी हम उसको पूरा करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो मैं भाई कमर के साथ मिलकर जो है हम दुआ करेंगे इसके लिए, शुक्रगुजारी के लिए, इस मीटिंग के लिए कि खुदावंद। अच्छा, दुआ से पहले मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ, मैं भूल गई हूँ कि जब मैंने मैथ्यू 23:23 का कोट किया था कि उसमें उसने कहा कि जब मैंने पहले कहा था कि उसने उसको कहा था कि वाओ you remember to give a 10% on your deal, your pulses on this and so and so and so, but you forget the justice, mercy and the faithfulness. But giving a tithe offering, it does not mean just give the tithe and forget the others. You have to remember, we have to remember the most important part, which is very, very important in God's eye. So we have to be we have to give the justice towards the other who needs a justice. We have to be merciful towards others, and we have to be faithful to the God, not just by giving our income or giving our offering that we are given, but we forget other things. If somebody come and need anything and then the other thing we forget to provide the justice towards others. So we have to remember the most important part too. Offering is not a good, it is good, cheerful heart, but it is not most important in God's eyes. Which is most important is like how we treating other with the justice and the mercy, and how we are walking with the God in all areas. So thank you guys. वो तो उसमें जब हम बात करते हैं कि जरूरतमंदों की हेल्प करना, तो रहम और खुदावंद जो है कुर्बानी नहीं बल्कि रहम को पसंद करता है। रहम करना पसंद करता है। वो हमारा एक अलग से टॉपिक है। तो लेकिन अभी हम यह भाई कमर के साथ मिलकर जो है हम दुआ करेंगे। कदूस बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे खुदावंद तमाम अफराद के लिए जितने भी तेरे खुदावंद होली मिनिस्ट्री के चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, उन पर तेरा गहरा फजल हो। और होली मिनिस्ट्री के एग्जीक्यूटिव को भी तेरे खुदावंद तेरे हजूर पेश करता हूँ। तो मजीद तेरे खुदावंद इनको बरकत दे, ताकि तेरे कलाम को, तेरे कलाम की अशायत को, फलाव को प्यारे खुदावंद बड़े आसान तरीका से प्यारे खुदावंद इस काम को सर अंजाम दे सकें। और प्यारे खुदावंद जितने भी इस चैनल के वसीला से तेरे कलाम को सुनते हैं,
ان پر بھی تیرا گہرا فضل ہو، ان سب کو اپنے لہو میں ڈپ کر اور تمام برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ مزید خاندانوں میں پیارے خداوند یسوع ناصری بہتری آئے، اور جو کچھ بھی آج ہم نے اس چینل کے وسیلہ سے، ہولی منسٹری کے چینل سے سیکھا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں، اور جو شکر گزاری ہیں اور ہدیہ جات خداوند تیرے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ان کو خداوند تیرے آئین کے مطابق استعمال کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، اور تیرے کلام کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتے رہیں، اور تیری روح سے معمور ہو کر پیارے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچیں، اور تاکہ جس طرح آسمان پر ستارے ہر وقت جو ہے وہ روشنی دیتے ہیں، اسی طرح تیرے خادم تیرے شعلہ بن کر تیرے لوگوں تک پہنچنے والے بن جائیں۔ یسوع یہ سب کچھ تیرے جلالی اور بابرکت یسوع نام سے مانگتا پا لیتا ہوں، آمین۔ آمین۔ Amen. Now we all pray for peace of Jerusalem. May there be peace in their wall. May there be peace in their palaces, Lord. And we continue to pray for the nation of Israel, Father, for their salvation, that you keep them safe and sound and protect them under divine protection in the mighty name of Lord Jesus Christ. We pray for blessing. Continue to pray for blessing for them, Lord. And we for all Christians all over the earth, we continue to pray for your blood, Lord Jesus, that you protect them all, keep them safe and sound, and pour your spirit onto them, Lord, and open their spiritual eyes for believer or non-believer, so they can acknowledge you, their Savior, and they can come and worship with the truth and the Spirit, Lord. We continue to pray for all our petitions for our brothers and sisters who are sick and suffering from any, or among all of us, if we are sick and suffering from any kind of health disease or any problems, health issues, or any kind of issues like a physical or not physicals or emotionally, we rebuke that all in the mighty name of Lord Jesus Christ. We're asking that you heal us supernaturally. Your grace and the Holy Spirit be with us all, and Father, that heal everybody's 100%, so heal them supernaturally, so keep them so they can be healed % and stay healthy and have a good and healthy and strong and longevity life. And Father, we continue to pray for your blessing, prosperity be upon us, Lord, and continue to pour upon your heaven and shower abundance, goodness upon us, Lord, and continue to shower the financial blessings upon us, Lord, so there shall be no lack in our houses. And Father, open our hearts so we shall be a cheerful giver towards others, Lord, and for your house, and so house can stay in a good shape, O Lord. So we will bring it to your house, Lord, and whatever we bring, Father, will be accepted into your throne of grace, into your eyes. So whatever your promises are to give us a blessing, Father, you will pour down your blessings upon us, Lord. We continue at that, Father, that you to hear our prayers, petition for your kingdom's sake and for glorious name's sake. Amen. Amen. खुदावंद आप सबको बरकत दे।